We are very happy to be back for another segment of a series that we called the Catalyst series. So every week, Shulli University Online brings on board very interesting people like Harshit to discuss everything between academics, industry, and how, as young aspiring learners, you can navigate, the workplace, the challenges that you might face. And today we are joined by Mr. Harshit Malviya. We're particularly excited for this session because, Harshit has some incredible credentials. He's currently the head of HR at a company called Satin Creditcare, which is one of the biggest players in the microfinance industry. Harshit, prior to this, has worked with AU Small Finance Bank as well. He specializes in talent acquisition, retention, performance management, statutory compliance, compensation benefits, and everything under the human resource spectrum. Harshit is from Prayagraj in Uttar Pradesh. He has a beautiful baby daughter. He also plays the guitar and is a big fan of contemporary dance, sports enthusiast, frequently participates in marathon, and is always looking to upskill himself, right? I had the pleasure of meeting Harshit last week with Tarunji. It was one of the best meetings I've ever been in. And joined by, from Shulni's side, is Mr. Tarun Gupta. Tarunji is an alumni of PEC Punjab. He currently serves as the Director of Operations at Shulni Online. Tarunji comes from a rich background specializing in telco and supply chain. So today, the topic of discussion is what got you here will not take you there. Um, and it's going to be a very interesting conversation between two industry leaders, two forward thinkers. And unlike our other sessions, this is going to be a conversation. And, we have some interesting insights in store for you all. So, with that, I would, pass it on to our speakers, Harshitji and Tarunji. Over to you, gentlemen. Thank you. So, good morning, everyone, and welcome to the session, Harshitji. Thank you, sir. So, I think as we have this very interesting topic, and I am reminded of a very apt quote from Alvin Toffler that illiterate of the 21st century will not be the one who cannot read and write, but will be the one who cannot learn, unlearn, and relearn. So I think with this, I would really have your thoughts on this, and we can also start the session, right? Correct. Thank you, Mr. Gupta. And I think very precisely and very correctly said, this era. So I'll tell you what. First of all, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ. I would rather be speaking more in Hindi rather than in English, so that everybody understands, and I think that will be the best part, right? तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने 3 तरह के रेवोल्यूशन देखे हैं. सबसे पहला रेवोल्यूशन जो था वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या कहता था? रोटी कपड़ा मकान. यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, अगर आपके ग्रैंडफादर हैं तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसी नौकरी करते थे जहां पे उनका बॉस उन्हें गालियां भी देता था, मारपीट भी करता था, हर तरह के बुरे टॉर्चर और बड़ा ही स्ट्रेसफुल जॉब होता था, क्योंकि उस जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लाइफ का एक उद्देश्य होता था, बेसिक नेसेसिटी फैमिली की पूरी करना. So it was industrial revolution. Then came information revolution. Information revolution means the generation of my father, wherein मेरे grandfather ने basic necessity fulfill कर दी है. So it is no more about roti kapda makan. It is about the standard of living, right? So उस era में information technology सबसे ज्यादा boom पे आई, ठीक है. अगर आप देखेंगे तो हमारे फादर के एरा में ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमने मेंटेन कर ली. बट द प्रॉब्लम विद द थर्ड रेवोल्यूशन is not related to industry, is not related to information. It is related to quality. So third revolution is the quality revolution that talks about कि आज की जनरेशन में जो हम हैं और जो आप लोग आने वाले हो,
उसको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, वो उसके दादाजी ने बना के दे दिया है। उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं चाहिए, उसको आपके फादर ने बना दिया है। उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, राइट? इसीलिए जो टर्म है वर्क लाइफ बैलेंस, ये इसी रेवोल्यूशन में इवॉल्व हुआ है। पहले वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कोई बात नहीं करता था। So what Mr. Gupta has asked, so even if you are, it is not about that you are an illiterate or uneducated. It is about whether you have the capacity to learn things, number one, because things gets obsolete with the era, with the changing times. आज आप देखोगे ना तो हर 6 महीने में एप्पल एक नया फोन लॉन्च कर देता है, एक नया वर्जन, बिकॉज उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी को वो खुद ही अपडेट कर ऑब्सोलीट मान लेता है और नई टेक्नोलॉजी ले आता है। सो देयर आर एल्गोरिथम्स व्हिच चेंजेस एवरी सेकेंड। आज आप किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लोगे ना तो हर प्रोडक्ट में आपको एक रेवोल्यूशन मिलेगा। KFC is not the KFC before. McDonald's changed its entire concept जब वो इंडिया में आया, आलू टिक्की बर्गर। And let me tell you, McDonald's पूरी दुनिया में चिकन और आलू टिक्की बर्गर कहीं नहीं बेचता है। They only sell hamburgers and pork burgers, pure, and beef. It is for India they had to change this concept because 150 people, crore people in this country, cheap consumers, cheap labors, and everything is being absorbed here. So the point is, if McDonald learned how to make that burger and became the industry king, and again it learned the entire thing, the entire process for a country like India, and then relearned what Indians want, that made him establish in the market. However, companies like Nokia, Motorola, BlackBerry, in terms of mobile industry, could not make it. Right? So the point is that it doesn't, it do matter कि how well your academics has been, of course, but शिक्षा ही सारे फसाद की जड़ है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। आज जो मैंने सीखा है वो मेरे कल काम नहीं आएगा, और अगर मैं उसको छोड़ करके उसको भूल करके अपडेट होके दोबारा रीलर्न नहीं कर सकता हूं चीजें, तो वो हमारे काम नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं क्लास 6th में था तो कहा जाता था प्लूटो इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। जब मैं क्लास 11th में आया तो मरकरी बिकेम द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, और प्लूटो को प्लैनेट ही से हटा दिया। सो सोलर सिस्टम जो 9 प्लैनेट्स का था वो 8 प्लैनेट का हो गया, राइट? आज मैं अपने प्रोफेशन की अगर बात करता हूं, HR डोमेन की बात करता हूं, तो आज एक HR प्रोफेशनल टिल 2013 ट्रांजैक्शनल HR था। 2013 से 2024 आ गया, अब ये ट्रांसफॉर्मेशनल HR हो चुका है। सो इट इज अबाउट, मैं ऑफ कोर्स आई मेट दीपित एंड मिस्टर गुप्ता, एंड मैंने ही कहा था कि फिलिप्स कॉटलर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एवरीवेयर। द पॉइंट इज, फिलिप्स कॉटलर ने आपको मार्केटिंग के बेसिक्स दे दिए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैट इज योर रोटी कपड़ा मकान, राइट? बट विद दोज बेसिक्स इफ यू कांट इवॉल्व योरसेल्फ, अगर आपको लगता है कि जो उस बुक में लिख दिया है, जो आपने पढ़ लिया है, उससे ही पूरा जीवन निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक वे, राइट? एंड लेट मी टेल यू, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। आप आज किसी भी कंपनी में कभी किसी भी जॉब रोल पे काम करोगे ना, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, एंड फॉर दैट you have to update yourself, and for that you have to learn and relearn, and that's how it goes. So I think, Tarunji, that is the answer to the question that you have asked. So that is the beauty of the entire I call it as PDCA, plan, do, check and act. Plan, do, check and act, and that's how it revolves. Okay, I think बड़ा appropriate ये आंसर था आपका। तो इसी संदर्भ में एक और सवाल है आपसे, वो ये कि जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं और साथ में न्यू एज करियर्स की भी बात करते हैं, तो इतना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का बोलबाला हो गया। तो क्या लगता है आपको कि इससे जो हमारी मैन पावर है उसकी नौकरियों में कटौतियां होंगी कि बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये एक काफी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कई बार कि नहीं, इससे जॉब्स की कटिंग होगी। तो क्या आप इसके बारे में कहना चाहोगे? सर, मैं तो एकदम डिफरेंट व्यू रखता हूँ इस पूरे AI बेस्ड मशीन लर्निंग ऐप, और जो आज की डेट में, चलिए मैं बात कर लेता हूँ सर। 1996 में
पूरे देश में 3 लाख लोग एमबीए करते थे पूरे देश में। 2024 की बात करूं तो हर साल इस देश में 25 से 30 लाख लोग एमबीए करते हैं, ठीक है। जबकि 1996 में एमबीए की क्लासेस व्हाइट बोर्ड और चौक पे चलती थी। 2024 की क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, नहीं तो सारे वेब बेस्ड या आपके मशीन बेस्ड क्लासरूम्स आपके हो चुके हैं, जिसमें आप आप प्रोजेक्टर का और सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो। 1996 में एक एमबीए के जो बैच स्ट्रेंथ होती थी वो 45 बच्चों की होती थी। आज की डेट में अगर मैं देखता हूं तो 400 से 500 बच्चे एनरोल करते हैं एक बैच में। द पॉइंट हियर इज देयर आर ओनली 5 रिसोर्सेज इन दिस वर्ल्ड, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप ये बात समझ लो, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, टाइम। आई रिपीट, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, टाइम। आउट ऑफ दीज 5 रिसोर्सेज, मैन जो इंसान है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो आपको और हमको भी ये बात समझनी पड़ेगी सर कि एल्गोरिथम एक मनुष्य ही बना रहा है, और यही मनुष्य उस एल्गोरिथम को रोज अपडेट करता है, उस सॉफ्टवेयर को रोज अपडेट करता है। तो एक टेक बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना इज जस्ट टू ईज आवर जॉब, इट कैन नेवर रिप्लेस मैनकाइंड। Without people, your apps will not work. Without people, your apps cannot be developed. Without people, they cannot be updated. Without people, the app will not understand the need and the demand of the market. It is the human brain that understands those needs, because app टेक्नोलॉजी में एक ही चीज मिसिंग है, वो है इमोशंस, फीलिंग्स। तो आप सब कुछ डाल सकते हो। अब तो न्यूज आई है कि अब टेक्नोलॉजी में भी इमोशंस हैं और फीलिंग्स हैं, आ सकती हैं, इनकलकेट हो सकती हैं, पर अगेन वो एल्गोरिथम के फॉर्म में ही आएंगी, राइट। सो मशीन लर्निंग कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन बींग्स, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ गिग मैन पावर, राइट। सो आप अगर देखोगे, इंडिया में गिग मैन पावर पहले नहीं थी, मगर अगर आप मेरे से पूछोगे तो इंडिया में गिग मैन पावर सतयुग के समय से है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। आप अपने अपने शहरों में जाइए और हर शहर में एक लेबर चौराहा होता है। वो लेबर चौराहे पे बहुत सारे लेबर खड़े होते हैं। आप रोज लेबर भर के जाते हो और अपना मकान बनवाते हो, दुकान बनवाते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो, अगले दिन वो लेबर चेंज हो जाती है। सही बोला। वो भी एक गिग मैन पावर है। गिग मैन पावर का मतलब क्या होता है? फॉर द टाइम बीइंग, अंडर यूज, एक समय के रहते हुए किसी मैन पावर का उपयोग करना, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो इंडिया आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, मैं आपको बता देता हूं, गिग मैन पावर पे वर्कआउट कर रहा है। हम खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल, जनवरी, फरवरी, मार्च बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए कलेक्शन का मंथ होता है, और जिस हिसाब से कलेक्शन का अमाउंट होता है और नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं, आप प्रेजेंट मैन पावर के साथ उनको टैप नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम 3 महीने की गिग मैन पावर हायर करते हैं, जो हमारे लिए 3 महीना काम करते हैं। 3 महीने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है। अगेन, ह्यूमन इंटरवेंशन। कैन एल्गोरिथम डू दिस? द आंसर इज नो। सो तीसरी चीज सर, कि इस देश में, मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट्स हैं ना, इस बात को जरूर नोट करें कि इस देश में 2 काम, मेरी तो गुप्ता जी से इस बारे में बात भी हुई थी उस दिन, कि इस देश में 2 काम सबसे आसान है और हमने उसको सबसे कठिन बना दिया है। पहला पढ़ाई करना और दूसरा नौकरी पाना। आई एम टेलिंग यू, if you are meritocratic in nature and you belong to a financially weaker segment or section, it doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक गरीब परिवार से आते हैं। आप ये बात को समझ लीजिए। आप गरीब मर गए, उसमें आपकी गलती है, पर गरीब पैदा होना कोई गलती नहीं है। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको हर माध्यम से सरकार, बैंक लोन देती है पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप पढ़ के निकलेंगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आप उनका पैसा आराम से रिपे कर देंगे। पहले तो क्लियर कर देता हूं कि आईएम्स में और आईएसबी हैदराबाद में फीस 25 लाख है, 30 लाख है, 15 लाख है, इट डजंट मैटर। मेरा फ्रेंड है दुर्गेश अग्रवाल, उसके फादर रिक्शा चलाते थे, पेडेस्ट्रियल रिक्शा, नॉट ऑटो रिक्शा। फर्स्ट अटेम्प्ट 100% इन कैट, आईएम अहमदाबाद, पूरी स्कॉलरशिप बैंक ने दी उसको, पूरी। पैकेज 45-50 लाख रुपीस पे प्लेस हुआ।
1 साल में लोन उतार दिया। इंटेंट था, क्योंकि वो पढ़ना चाहता था। तो पहली चीज आप ये समझ लो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है पढ़ने की, तो दुनिया में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। मैं आज हेड ऑफ एचआर होने के नाते किसी को नौकरी दे सकता हूं, उससे नौकरी करवा नहीं सकता हूं। इसी तरह से मैं आपको पढ़ने के लिए कह सकता हूं, पढ़ा नहीं सकता हूं। दूसरा, नौकरी पाना इस देश में सबसे ज्यादा आसान है। आपको पता है इस देश की जनसंख्या कितनी है, और उस जनसंख्या में कितने लोग हैं जो वर्किंग हैं? This is the youngest nation. You should know the average age of this country is 26 years, whereas the average age of Japan is 59 years. They are struggling because उनके पास जवान लोग नहीं है काम करने के लिए। हमारे पास इतने हैं पर हम काम नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि मैं 12,000 की नौकरी क्यों करूं, इससे अच्छा तो मैं अपना काम कर लूंगा। सर, आप जिस दिन कितना कमा रहे हो उस पर नौकरी करना शुरू करोगे ना, तो आप नहीं कमा पाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो सर, नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होती है और फिर इन्फिनिटी तक जाती है। 0 का मतलब होता है कि आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। पर अगर आप 12,000 की नौकरी भी शुरू करते हो, यानी कि आप एक नंबर पे हो, नंबर लाइन में 1 पे हो, इसका मतलब आप एग्जिस्ट करते हो, तो आप 100 तक पहुंच जाओगे। तो पहले शुरू तो करो, वो इंपॉर्टेंट है। सो द पॉइंट हियर इज, you cannot replace humans at any point of time in any of whatever you call it, industry, or even in any form. Humans are irreplaceable. It cannot be. Yes, Okay. sir. तो एक तो आई थिंक क्रक्स पॉइंट्स था, आई थिंक कैसे वो टाइम मैनेजमेंट, मैन, मनी, मटेरियल एंड ऑल, एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट. Correct. And one more thing which you specifically mentioned here, and I would like to emphasize that. So we talked about that earlier also. That was more to do with empathy. It was also to do with emotional quotient and all that. Correct. And as Daniel Goleman, he clearly conveyed that emotional intelligence people with well-developed emotions, so and skills, they are likely to be more content, and Correct. they have more focused approach and clarity of thought. Correct. So in this context, now I would like to also further deep dive into, I think there is something called IQ and there is something called EQ. So, and there is something called EI, emotional intelligence. Correct. So life is interrelation between these three factors. So when I am talking about IQ and when I am talking about EQ, तो आपको क्या लगता है कि in corporate world and in normal personal lives also, which type of Q and which type of I is more important, right? Over to you. तो मैं आपको पहले बता दूं कि तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर बट रोल डिमांड, जॉब स्पेसिफिकेशन और इंडस्ट्री के बेसिस पर ये वेरी करते हैं। हाउएवर, इन तीनों फैक्टर में जो इमोशनल इंटेलिजेंस फैक्टर है वो सबसे हाई होता है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि मैं कैसा व्यक्ति चाहता हूं जो मेरी टीम का पार्ट हो, मैं बोलूंगा जो आसमान गिरने से पहले मुझे बचा ले। कहने का मतलब है मैं एक कंटिंजेंट मैनेजर लेना चाहूंगा, जो मेरी कंटिंजेंसी में, अगर मैं बोलूं 1 = 2 प्रूफ कर दो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि ही कैन ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद 3 लाइंस, आई वुड लाइक टू वर्क विद दोस फेलोज। यू नो व्हाई? बिकॉज हमें पता है 1 = 2 कभी नहीं हो सकता, या एक रेक्टेंगल 3 लाइन से कभी नहीं बन सकता। पर क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे फीजिबल सोल्यूशन तक तो नहीं पहुंचाएगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचा दे? कि मैं आपको 100% सोल्यूशन नहीं दे सकता बिकॉज मैथमेटिकली 1 = 2 नहीं हो सकता, बट क्या वो मुझे 98% सोल्यूशन तक पहुंचा सकता है? दैट मींस ही इज एबल टू सॉल्व 98% ऑफ माय प्रॉब्लम, एंड वो भी ऐसी प्रॉब्लम जो कंटिंजेंट है। नंबर 1, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है सर? इमोशनल होना प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर नॉट इमोशनल, दैट मींस आप ट्रस्ट, प्राइड, कमराडरी, एम्पैथी और सिंपैथी पे फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी एम्प्लॉय की, कभी नहीं कर पाएंगे इफ यू आर नॉट इमोशनल। बट इमोशनल फूल नहीं होना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरी लीडर इन द इंडस्ट्री, not only HR, every leader in the industry is the bridge between the management and its own people, right? And that bridge cannot collapse because हर कंपनी में जो पिरामिड होता है उसमें 3 ही चीजें होती हैं सर: पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, राइट?
और आप इफ यू आर नॉट हाई ऑन EI, आप ये तीनों चीजें अचीव नहीं कर सकते, और एक भी इम्बैलेंस होगा, द ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन. You have to take care of people, you have to take care of your planet, and only then you can get profits. Right? Number two, if I talk about emotional quotient, the quotient is how good you are to understand and read the emotions of others. वहां पे फोकस ज्यादा होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला व्यक्ति बहुत इमोशनल है और उस इमोशनल डायलेक्ट में मैं कोई गलत डिसीजन मेकिंग दे दूं. तो आप सब एक बात याद रख लेना, ये जो वर्ड इमोशन होता है ना, मोड ऑफ इमोशन में अगर आप हैं तो आप कभी डिसीजन मत लीजिएगा. दैट मीन्स इफ यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत नाराज हैं या बहुत कंफ्यूज हैं, कभी निर्णय मत लेना लाइफ में, गलत निर्णय ले लोगे. डिसीजन लाइफ में तभी लिए जाते हैं जब आपका माइंड न्यूट्रल होता है, यानी कि आप इमोशनली साउंड होते हो, इंटेलिजेंस और कोशेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. तीसरी चीज आती है आपकी IQ, इससे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वेस्ट भी कहते हैं. इट हैज एवरीथिंग टू डू विथ योर बेसिक्स, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो. अब इस कैटेगरी में 3 तरह के लोग आते हैं. एक जिसे सब कुछ आता है, एक जिसे बिल्कुल नहीं आता है, और एक जिसे आधा आता है और आधा नहीं आता है. ये पहली और लास्ट कैटेगरी जो है ना, जिसको आता है और जिसको नहीं आता है, वो डेंजरस नहीं होते हैं. They are not dangerous. Why? Somebody who knows is an expert already. Somebody who doesn't know, हम उसे सिखाएंगे, वो सीख जाएगा. The problem is half knowledge is very dangerous. So ये तो दूसरे कैटेगरी है, बीच की कैटेगरी, ये कभी नहीं बनना है अपने को. नहीं आता है, एंड वो पता है वो कैटेगरी में हम आते कैसे हैं, क्योंकि हम बताते हैं सबको कि हमें आता है, पर हम अंदर से जानते हैं कि हमें नहीं आता है. That means we are not vocal about our weaknesses. वी आर नॉट वोकल, हम सच बोलते नहीं है कि हमें डोमेन नॉलेज में सर ये चीज नहीं आती है. कोई नुकसान नहीं है अगर आप बता दोगे ना कि आपको नहीं आता है, तो आपको सिखाया जाएगा. और अगर आप बोलोगे ना कि आपको आता है, तो एक कॉर्पोरेट ये अज्यूम करता है कि आपको पहले से आता है, तो हम आपको उस पर ट्रेन नहीं करते हैं. बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी आर नॉट गॉड. राइट? सो इंटेलिजेंट, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? पे मैंने एक बहुत सीनियर लीडरशिप के रोल को रिजेक्ट किया है इस क्वेश्चन पे. नाउ दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद जॉब, दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद बिजनेस, दिस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विद पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट, येट देयर वाज अ रिजेक्शन. रीजन, आप अपने दोस्तों से सवाल पूछ के देखना, 10 में से 7 लोग इसका जवाब गलत देंगे. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज की. वाई? आप पूछना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बोलेंगे दिल्ली. इट इज नॉट दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली. आप ट्राई करके देखना. वाई रिजेक्शन? योर बेसिक्स आर वीक. इट डजेंट मैटर आपने पढ़ाई कहां से कर ली, इट डजेंट मैटर आपको कितनी डोमेन नॉलेज, इट डजेंट मैटर. बुनियाद कमजोर है, कभी ना कभी कोलैप्स करेगी. राइट? एंड एज इज जस्ट अ नंबर. आई एम टेलिंग यू. मैं सर से यही बात कर रहा था. I am 35, heading the HR for this large organization. I want some other Harshit to become at 30 or somebody becoming at 25. It is not about your age. It is about आपने क्या सीखा है, आपने कितना सीखा है, और कितना मजबूती से सीखा है, और कितना आप याद रख सकते हो चीजों को. वो इंपॉर्टेंट है. मुझे भी HR डोमेन में बहुत सारी चीजें मैं रोज सीखता हूँ. ऐसा नहीं मैं पढ़ चुका कर चुका तो नहीं है, पर अपडेट रखता हूं. सो ये है डिफरेंस IQ, EQ और EI में. सो आई विल ऑलवेज प्रेफर समबडी एज एन HR हु इज एक्सीलेंट इन EI. मेरे लिए पैरामीटर ही वही है. हु कैन मैनेज हिज और हर ओन इमोशंस, पहले तो. सेकेंड, एवरेज और बेटर देन एवरेज इन EQ, हु कैन अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, जो एम्पैथाइज कर सके, सिंपैथाइज कर सके. ओवर एम्पैथी और ओवर सिंपैथी में नुकसान हो जाएगा. वो एम्पैथाइज कर सके, सिंपैथाइज कर सके, ट्रस्ट, प्राइड, कमराडरी का कल्चर बिल्ड कर सके. थर्ड इज IQ में उतनी ही टेस्ट करूंगा जितने में मुझे पता चल जाए कि उसका बेस स्ट्रॉन्ग है. अदरवाइज MBA स्टैंड्स फॉर महा बेकार आदमी, ऐसे भी लोग हैं. और MBA स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. ये आपको और हमें डिसाइड करना है हम किस तरफ जाना चाहते हैं. एक छोटा सा सर्वे में आपको और बता देता हूं सर. गूगल पे आप सर्च करोगे ना,
तो आपको गूगल में सर्वे मिलेगा कि 100 लोग जो एमबीए करते हैं, 100 लोग जो एमबीए करते हैं, उसमें केवल 10% लोगों को पता है कि उनको एमबीए किस में करना है। यानी कि 90 लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें एमबीए किस में करना है। अब एमबीए क्यों करना है, सॉरी, तो 10 लोगों को पता है कि वो एमबीए क्यों कर रहे हैं, बाकी 90 होते हैं कुछ नहीं किया तो एमबीए कर लिया। अब इन 10 लोगों में केवल 30% लोगों को पता है कि उनको एमबीए क्यों कर रहे हैं और किस में करना है। यानी कि 3 लोगों को ही पता है कि उनको एमबीए क्यों करना है और किस में करना है। यानी कि 100 में से केवल 3 ही लोग ऐसे होते हैं एवरी 100 who knows why they are doing MBA and in what field they are doing MBA, because their vision is very clear from day one. ये एक बैलेंस्ड EI, IQ और EQ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। Their EI is very high because they know their emotions, their feelings, what they are doing is right or wrong. Their EQ is very high because they're understanding others, competing with others, getting out of it. And third, their IQ is high, इसीलिए 100 में से 3 है। So I think you have very rightly answered, and this also partly answers as to how we do hiring nowadays. Correct. But I think I would also like to add here that there should be some quantitative way of measuring IQ, EQ, and EI of the candidate. Many times when his credentials are presented to us, तो ऐसा लगता है कि his mark sheets and other things, they are so good and all. So in terms of assessments, in terms of psychometrics and all, so I see now the HR also takes care of these things through an assessment part, which is say 60 minutes, and you are able to check EQ, IQ, skills and ability. Right. So how you perceive that, and how you take it in terms of an appropriate hiring tool? So सर देखो मैं बताता हूँ आपको कि साइकोमेट्रिक टूल्स को जो पहले सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोसेस बना दिया गया था ना, नाउ दीस टेस्ट हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट वर नेवर द रीजन ऑफ सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट, नाउ दे आर। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। somebody who is heading my payroll, somebody who is heading my payroll is a second divisioner throughout, and somebody who is reporting to the head of payroll is a first class divisioner with distinction throughout. The point here is academics plays a role at a certain level. However, वो साइकोमेट्रिक टेस्ट बता देता है हमें कि मेंटल एबिलिटी क्या है सोचने की, वेदर यू आर फिट फॉर दिस डोमेन और नॉट। तो एक वो एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है हायरिंग में, ऑफ कोर्स। Number 2, I have seen people scoring less in their academics, but their knowledge is very high because they have the habit to read. पढ़ते हैं वो लोग। मैं आपको एग्जांपल अपने ही दोस्त का दे सकता हूं जिसके एकेडमिक्स में नंबर मुझसे भी कम थे, अगर आप उससे जनरल बिजनेस नॉलेज पूछोगे ना तो मुझसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो रोज पढ़ता है। They read every day. It's not because नंबर कम इसलिए आते हैं कि उसको टेस्ट एग्जाम क्लियर करना है, नंबर कम आ गए, वो एक अलग पैटर्न है। एक होता है कि आप कितने अपडेटेड हो, कितना पढ़ते हो रोज। तीसरी चीज सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मैं आप सबको नाम ऑफ कोर्स बताना चाहूंगा, आप उसका सैंपल ले सकते हो, कर सकते हो। थॉमस पीपीए, थॉमस पीपीए टेस्ट है जो 4 फैक्टर्स पे काम करता है, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस और कंप्लायंस। तो ये आपको बता देगा कि आप जिस डोमेन के लिए जाना चाहते हो, आप उस डोमेन के लिए राइट हो कि नहीं। मतलब अगर आज मैं बोलूं कि मैं एचआर बनना चाहता हूं, तो मुझे टेस्ट दूंगा तो पता चल जाएगा कि मैं एचआर बन सकता हूं क्या, अच्छा बुरा नहीं, क्या एचआर के लिए बना हूं मैं, या मैं मुझे फाइनेंस या अकाउंट्स में जाना चाहिए, मार्केटिंग में जाना चाहिए। वो डोमेन डिसाइड करता है। वेरी हेल्पफुल, वेरी साइंटिफिक, वेरी हेल्पफुल टूल, साइंटिफिक। तो आप जैसे बच्चों को ना अपनी डोमेन चूज करने से पहले टेस्ट जरूर देना चाहिए कि आप जो सोच रहे हो और जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, आप पहले वो देखो। मैं एक डॉक्टर को इंजीनियर नहीं बना सकता, क्योंकि एक डॉक्टर जो इंजीनियर बनेगा ना, और जो जो पुल वो बनाएगा, उस पुल पे मैं कभी नहीं चढ़ूंगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। ऐसे और बहुत सारे टेस्ट हैं। स्टाइल सर्वे जिसे हम कहते हैं, स्टाइल सर्वे एक बेहतरीन टेस्ट है जो मुझे बताता है कि मेरी डिजायर और मेरी देने की क्षमता में कितना फर्क है। हाउ मच आई एक्सपेक्ट एंड हाउ मच आई वांट। एक्सपेक्टेशन वर्सेस वांट का टेस्ट होता है ये। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी होगी, whether you will be an autocratic, whether you will be democratic, whether you will be bureaucratic, whatever it is, it will help you to tell you what is your leadership style। और आप उसे बदल नहीं सकते हो। साइंटिफिक टूल है, वो आपके हार्डवेयर से डिराइव होता है, यानी कि आपकी
सोचने समझने उठने बैठने की क्षमता पे, पर्सनालिटी और एटीट्यूड पे टेस्ट होता है। फिर मैं सर को बता रहा था कि आप विश्वास नहीं करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट आज से नहीं है, भगवान कृष्ण के समय से है। दुनिया का पहला साइकोमेट्रिक टेस्ट इनियाग्राम, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, वो भगवत गीता से निकाला गया है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम भगवत गीता। वंडरफुल टेस्ट, मस्ट गिव। MBTI, मेयर्स ब्रिक टेस्ट इंडिकेटर्स, 16 पर्सनालिटी टेस्ट है, आपको वो टेस्ट जरूर देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपसे मैं बोलूंगा आप इंट्रोवर्ट हो क्या, आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ। सर इंट्रोवर्ट होना कोई खराब बात नहीं है, या एक्सट्रोवर्ट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आप अगर इंट्रोवर्ट हो ना, तो आप किस फील्ड में जाओगे बहुत डिपेंड करता है। अगर एक HR इंट्रोवर्ट होगा तो वो फेलियर हो जाएगा, क्योंकि वो लोगों से बात नहीं करेगा। मगर अगर एक फाइनेंस का बंदा एक्सट्रोवर्ट होगा तो वो सारे कंपनी के फिगर्स लीक कर देगा और वो वहां फेल हो जाएगा। The organizations collapse because of hiring wrong personalities in their organization. तो ट्रेड गलत है अगर आपका और मैंने आपको रख लिया, तो भी वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आज की डेट में हमें ये बताते हैं, क्योंकि देखिए जब मैं किसी को हायर करता हूं तो 1 साल के लिए हायर नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कम से कम 5 से 7 साल के विजन पर हायर करते हैं हम, राइट? So when you're hiring, we ensure कि you stay back with us for at least 5 years so that return on investment is justified, right? But वो साइंटिफिक टूल के थ्रू ही हो सकता है। और ये साइकोमेट्रिक टेस्ट हमेशा इंटरव्यू से पहले हम लेके रख लेते हैं, ताकि आप हमें इंटरव्यू में ब्लफ ना कर पाए कि आपकी पर्सनैलिटी ये कहती है पर आप इंटरव्यू में मुझे कुछ और बता रहे हो। तो वहां पे वो क्लियर रिजेक्शन का रीजन बन जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू। इसलिए ये पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये देने चाहिए, और हर 6 महीने में देने चाहिए, क्योंकि 6 महीने में योर पर्सनैलिटीज चेंज, your test results will change. I am telling you, because in 6 months either you will be updated or you will become obsolete. In both the cases the scores will change. Only change is constant, everything is changing. So ये टेस्ट हमें देने चाहिए। मैं आज भी कोई ना कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूर देता हूं। OPQ32, OPQ64, OPQ180 सब आ चुका है। अब तो आप अगर देखोगे तो ये सारे, and companies are spending huge amount of money इन कॉर्पोरेट, हमको टाइप्स करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं टेस्ट के लिए, सो दैट वी ब्रिंग इन राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एंड ब्रिंग पीपल हु आर डिजर्विंग। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आपको मतलब सेम लगेगा, मेरे लिए मतलब बहुत अलग है। व्हाट यू गेट इज व्हाट यू डिजर्व, और व्हाट यू डिजर्व इज व्हाट यू गेट। ये आपको डिसाइड करना है। कहते हैं ना सूरज निकल आया इसलिए सुबह हो गई है, या सुबह हो गई इसलिए सूरज निकल आया, ये आपको डिसाइड करना है। ये इफ एंड ओनली इफ कंसेप्ट है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट या ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स हमें हेल्प करते हैं। एरर फ्री देखो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है, तो एरर फ्री कुछ नहीं होता, बट इट हेल्प्स अस टू सेलेक्ट द राइट पर्सनालिटी, द राइट ट्रेट, द राइट फिटमेंट फॉर द राइट जॉब टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी। वेरी सिंपल। यस सर। Okay, I think Harshit ji, we also talked about experiential learning, and so the question is, merely getting degrees based on theoretical concepts, is it going to suffice, or there has to be a proper mix of theoretical coupled with the experiential learning, which is actually going to help us upskill in the real life scenario? तो सर मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, ये मैं इस पे सबसे बड़ा भुक्तभोगी रह चुका हूँ, क्योंकि तो when I was doing my MBA, I did my industrial training from Google. Everybody knows Google, right? 2.5 months training. It was less of training, more of party training, because everything is free in Google. आपको खाने पीने सब चीज की सुविधा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है, लग्जरी ऑफिस, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। बट इफ यू आस्क मी माय लर्निंग, जीरो। देन आई प्लान एंड आई डिसाइडेड कि मैं विंटर में ना कॉलेज से परमिशन लेके 1 महीने की ट्रेनिंग और करूंगा, एंड आई डिड माय फैक्ट्री ट्रेनिंग एट श्री सीमेंट जयपुर। Okay. बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी, एक सक्सेसफुल HR वही है जिसने फैक्ट्री में काम किया हो, जिसको असेंबली लाइन पता हो, क्योंकि एक फैक्ट्री जो होती है ना वो प्रोसेस पर चलती है। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तभी ये होगा। और एक HR होने के नाते आपको ट्रेडिशनल HR प्रैक्टिसेस जाननी जरूरी है, जो आपको फैक्ट्री में मिलेंगी। लेबर यूनियन फैक्ट्री में मिलेगी, प्लस somebody who is creating इस फैक्ट्री,
उत्पादन तो फैक्ट्री से ही होता है ना, उसके बाद आप उसकी मार्केट करो, सेल्स करो, आफ्टर सेल्स करो, वट एवर यू वांट टू डू, बट पैदा तो वहीं से हो रहा है. तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड टू द कोर. तो ये मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थी कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने फैक्ट्री में अप्लाई होते हुए देखा. अब सर इसमें एक प्रॉब्लम आती है. मैं आपको ऐसे केसेस बता सकता हूं जिसमें बच्चा एमबीए कर रहा है मार्केटिंग में, ट्रेनिंग करता है एचआर में, और नौकरी कर लेता है फाइनेंस में. मैं पूछता हूं ऐसा क्यों? तो बोले सर वो इंटर्नशिप के लिए कहीं से आ नहीं रहा था, तो मार्केटिंग में तो मिली नहीं, तो हमने कहा एमबीए की डिग्री चाहिए थी, तो हमने एचआर में इंटर्नशिप कर ली कि हमें डिग्री तो मिल जाए. फिर क्या हुआ, प्लेसमेंट. सर वो क्या हुआ कि एचआर के लिए कंपनी जो आ रही थी वो तो 12,000 दे रही थी, फाइनेंस की कंपनी 20,000 दे रही थी, तो मैं 20,000 वाली कंपनी में चला गया. उसने पता है क्या किया? उसने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा करियर कॉम्प्रोमाइज कर दिया. और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं मिली. नहीं मिली. He compromised on his domain, number one. Because he compromised on his domain, तो जिस डोमेन में उसने ट्रेनिंग की उसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था, तो 2 महीने में कुछ भी नहीं सीख पाया. और क्योंकि वो नहीं सीख पाया, इसलिए वो तीसरे डोमेन की तरफ बढ़ गया कि यहां तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं. तो पॉइंट ईयर इज कि आप जो अपने करिकुलम में पढ़ते हो, आई एम टेलिंग यू, आप जितने जार्गन्स पढ़ते हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हायरिंग, टैलेंट एक्विजिशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, appraisals, management by objective, ऑपरेशन रिसर्च, बिजनेस मेथोडोलॉजी. सर अगर ये चीजें बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे अपने रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, और जब ट्रेनिंग पे जाएं तो अपने एम्प्लॉयर से पूछें कि सर ये हमने पढ़ा था. आप अगर ये सोचोगे कि एम्प्लॉयर आपको बिना पूछे सिखा देगा, तो आप पहले गलत फहमी में जी रहे हो. लेट मी टेल यू, इंटर्नशिप आपकी है, सीखना आपको है. आपको एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि आप क्या सीखना चाहते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, आप आगे किस डोमेन में जाना चाहते हो. नंबर एक. नंबर दो, आपको अगर वो एक्सपीरियंस दिया जा रहा है तो आप उसमें सवाल पूछो कि सर बुक में तो ये लिखा था, हमने ये पढ़ा था, सर आप दिखा सकते हैं ये कैसे होता है. वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो इफ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पहली बात तो कभी नहीं मिलेगी. बिकॉज कोई नहीं जानता है किसी के अंदर कि वो क्या चाहता है. जब मैं फैक्ट्री एचआर कर रहा था तो मैंने एक आईआर ईआर लेबर लॉज से लेकर के एक एक चीज पे सवाल उठाए. भाई मुझे बताया गया कि फैक्ट्री, मैंने पूछा फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, तो 10 लोग विद द एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या 20 लोग विदाउट द एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फैक्ट्री कहते हैं. मैंने कहा एग्जांपल दो. बोले बीड़ी जहां बनती है, बीड़ी, वो 20 लोग मजदूर एक जगह बैठ के काम करते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता, वो हाथ से बनाई जाती है, वो भी फैक्ट्री है. राइट? तो So I agree with you. And I think I also correlate this with my experience. So I was made a member of a syllabus committee for PEC Chandigarh. So I went there for mechanical engineering, and I was told to revisit the topics. And I simply asked them that we have been learning engineering mathematics for 4 semesters. And is there any relevance of engineering mathematics? So after that, in the real life, I didn't find the relevance while I was traversing my journey in professional world. So actually, I got that changed somewhat, and subjects like operation, supply chain management, and all that, so which were more job centric. So applied statistics. So I got them inserted, which had more relevance in professional life and all that stuff. करेक्ट और करेक्ट. एक आपका और कहना बहुत सही है कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि क्या हम, जो हमारे मन में एक धारणा बनी हुई थी कि हम एचआर करना चाहते हैं, क्या सचमुच हम एचआर करना चाहते हैं. तो व्हेन आई एम इनटू एक्सपीरियंशियल लर्निंग फॉर एचआर, सो आई रियलाइज नो, वाज इट सो, आई वाज नॉट मेंट फॉर इट. So we are also having that opportunity to correct ourselves while we do सर देखिए मैं आपको एक छोटा experiential एग्जांपल learning. देता हूँ. मेरी टीम में मेरी टीम के सदस्य हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वो एचआर हैं. Okay, He or she wanted to be a doctor since childhood. okay, okay. Since childhood. But you know, वो एक सार्कास्टिक कहावत है कि आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन ruined me. So Right. by the time that employee
reached to that stage and he or she realized कि नहीं, I am not meant for a doctor to be a doctor. See, आप खुद को ब्लफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर उसके बाद भी वो डॉक्टर बनता तो बहुत ही खराब डॉक्टर बनता, right? And now that employee is doing wonders and is excelling in HR because that was the domain. So rectification बहुत जरूरी है, जैसा आपने बोला ना सर, वो rectification और specificity बहुत जरूरी है. अगर आप specific नहीं हो तो you will be in no man's land, that's for sure. So I think so as far as I am concerned, I think हमने discussion के context में we were quite interactive. Now I also would like to request you, please throw some light on the interview tips and other things like you recruit people. So we have lot many MBS people who are doing MBA and all. So just Right. lighten them on what is the process, and I think I'll just like some 5 minutes on that. Definitely sir, definitely. तो सर मैं शुरुआती इसी बात से करूंगा कि कोड ऑफ कंडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. Okay. अगर आप स्टाइलिश हो, फैशनेबल हो, बड़े बाल रखते हो, मत रखो उस दिन. दैट इज द डे ऑफ योर लाइफ. हेयर्स विल ग्रो अगेन. बी स्मार्ट, बी पॉलिश्ड, बिकॉज यू हैव टू वॉक द टॉक. आपको, आप ऐसे होने चाहिए कि जब आप रूम में एंटर करो ना, मैं आपको सच बता रहा हूं, एज एन इंटरव्यूअर, इफ समबडी इज एंटरिंग द रूम, वहां से कॉन्फिडेंस लेवल हम जज कर लेते हैं एकदम क्लियर. द वे समबडी ओपन, दरवाजा खोलने के तरीके से, ये बहुत बड़ा परसेप्शन मैं बता रहा हूं आपको. और फिर आपका इंटरव्यू अकॉर्डिंगली उसी तरह ड्राइव होता है. पहला. दूसरा, आपकी जो सेल्फ इमेज है, जैसे आप हो व्यक्तिगत तौर पे, प्लीज पैनल को वैसा ही बताओ. आप अगर नोटोरियस हो तो आप नोटोरियस हो. आपने पढ़ाई नहीं की तो आपने पढ़ाई नहीं की. आपको नहीं आता है तो से अ बिग नो, दैट आई डोंट नो. ब्लफ मत करो. ब्लफ करोगे तो पकड़े जाओगे. पहला, बिकॉज somebody who is interviewing is more experienced and knowledgeable than you. नंबर वन, आपके बात दिमाग में रखनी पड़ेगी. दूसरा, अगर आप ब्लफ कर भी गए तो अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से अराइज होगा जो आपने लास्ट आंसर दिया है. सो व्हेन आई विल डीप डाइव, जब मैं उस चीज की गहराई में जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा आपको नहीं आता है. तो आप जैसे हो, बी योर सेल्फ. बी योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ इमेज, हम हमेशा सेल्फ इमेज जज करते हैं. हम ये नहीं जज करते कि आप अंडर प्रेशर कैसे होगे या वर्क मास्क के साथ कैसे होगे. ये तो मैं तभी जज कर पाऊंगा जब आप काम करना शुरू करोगे. सच्चाई तो ये है. 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के इंटरेक्शन में अगर मैं बोलूं कि मैंने एक राइट रिक्रूटमेंट किया तो वो भी एक स्टेटमेंट गलत है. इट इज अबाउट एक दूसरे को हम कितना जान सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं. तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट लाइफ में करते हैं लोग, बच्चे करते हैं, वो ये करते हैं सर, कंपनी आई, कंपनी का ब्रांड नेम बहुत अच्छा था, इंटरव्यू में बैठ गए, सेलेक्ट हो गए, जॉब ज्वाइन कर ली, भले ही वो प्रोफाइल उनके काम की नहीं थी. प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट कि आप मुझे कैसे लगे, इट्स ऑल्सो अबाउट कि मैं आपको कैसा लगा. सी, दिस इज अ रिलेशनशिप, प्लीज अंडरस्टैंड. हिंदुस्तान में आज भी कुछ चीजें घीमेल पे होती हैं, जीमेल पे नहीं. जैसे शादियां है ना, कभी सुना है जीमेल पे शादी होती है? नहीं होती, घीमेल पे होती है. सिमिलरली एजुकेशन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप, अ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप. तो सर आप ये जरूर चेक करो कि भले ही सामने वाली कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, क्या पता छोटी कंपनी की प्रोफाइल ही आपको अच्छी लग जाए, आपको वहां कल्चर अच्छा लग जाए, आपको वहां का एचआर अच्छा लग जाए, एम्प्लॉइज अच्छे लग जाए, पॉलिसी अच्छी लग जाए. यू नेवर नो. आप, हर व्यक्ति पैसों के लिए नहीं जाता है. मैं आपको बताऊं कितने लोग ऐसे हैं जो कम पैसों पे ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहां फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां एचआर पॉलिसी स्ट्रांग है, वहां कल्चर अच्छा है, एट्रिशन ही नहीं होता. तो आप ये डिसाइड करो कि सामने वाला एम्प्लॉयर भी आपके लायक है कि नहीं. डोंट कॉम्प्रोमाइज. चौथा, फोर्थ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. आई एम अगेन रीइटरेटिंग दिस इन, आई थिंक इन ऑल द 4 क्वेश्चंस आई हैव रीइटरेटेड. बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. बेसिक्स का मतलब है जो आप पढ़ रहे हो ना, उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. दुनिया में क्या हो रहा है ना, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. प्लीज अंडरस्टैंड. अगर आपसे बोला जाता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, तो प्लीज लिसनिंग म्यूजिक, कुकिंग फूड, वॉचिंग मूवीज लिखना बंद करो.
ये हॉबी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट हॉबीज हैं ये, और ये कभी हॉबीज नहीं हो सकती, ये लेजर टाइम कहते हैं इसे हम। हॉबीज वो होती हैं जो आपको मेंटली कंस्ट्रक्ट करती हैं, ठीक है। अ साउंड माइंड डिसाइड्स इन अ साउंड बॉडी, इसीलिए कहा जाता है। जैसे मेरी हॉबी है, मेरे अपने इंट्रोडक्शन में क्लियर है, मैं गिटार बजाता हूं, मैं डांस सीखता था। मैंने गिटार बजाना क्यों शुरू किया? स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए। सो मैं माइंड से अब साउंड साउंड रहूंगा ना, तो ही मैं सब काम कर पाऊंगा। ये हॉबी एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चेक करता हूं तो मेरे लिए फायदेमंद है। यह एक एम्प्लॉयर के लिए मेरी हॉबी फायदेमंद है, बिकॉज उसको पता है सिंस आई एम इनटू म्यूजिक, सो आई विल ऑलवेज बी लेस स्ट्रेस्ड देन अदर्स, सो आई कैन गिव बेटर आउटपुट्स, ठीक है। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसअग्रीइंग, किसी की बात को काटना, और अग्री टू डिसअग्री होना। आप बोलने में ब्लंट हो सकते हो, मैं आई एम ब्लंट, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी ओपन ऑन टू द फेस, बट इफ यू विल सी मी replying to somebody, it will always have a courtesy, right, soft voice and a sense of understanding and belongingness while I am replying back. मैं जब किसी को जवाब देता हूं ना, तो इज्जत का पूरा ध्यान रखता हूं। वो व्यवहार दूसरे के साथ ना करें जो व्यवहार आपको खुद के साथ पसंद ना हो। So even if you are disagreeing with the interviewer, do it with respect and give a logic, ठीक है, give a logic, very important. And you should have a proper eye contact while you are speaking with someone. मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अंग्रेजी और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्कशन मेरा सर के साथ हुआ था। अगर आपकी अंग्रेजी खराब है, आप मेरी बात सुनो, और आपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, तो आप 100% रिजेक्ट हो जाओगे, चाहे आपके पास कितनी नॉलेज हो, कितनी स्किल हो, कितनी एबिलिटी हो, आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको आता नहीं है। आप हिंदी में बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेजी, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता मापने की का तरीका भाषा नहीं है। आप जो पूछ रहा है, आप जो उसे जवाब दे रहे हो, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो जवाब हमेशा गलत माना जाएगा, क्योंकि आप मुझे समझा ही नहीं पाओगे आप कहना क्या चाहते हो। तो कोई शर्म नहीं है। मैंने सर को ही बोला कि इंग्लिश इज माई सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी इज माई फर्स्ट लैंग्वेज। मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, मेरी हिंदी मेरी पहली भाषा है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड। आप जापान जाओगे ना, लोग जापानीज में बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे आपसे इंग्लिश में। तो हमें क्यों शर्म है? हमने ये परसेप्शन बना रखा है कि जो अंग्रेजी नहीं बोलता ना, वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत 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 गलत परसेप्शन है, झूठ है ये मिथ है, ये मिथ है, और ये मिथ हमारे जैसे लोगों ने फैलाया है। मैं चाहता तो ये अपने पूरा कम्युनिकेशन अंग्रेजी में कर सकता था, पर मुझे नहीं पता मेरी बातें आप में से कितनों को समझ में आएंगी और नहीं आएंगी, तो मैं रिस्क क्यों लूं? उस भाषा का चयन किया जो सबको समझ में आती है, करेक्ट। तो मेरे नहीं पता ना आप में से कौन लोग पढ़ने में तेज हैं, कौन नहीं है, इट डजेंट मैटर टू मी। जो मैं कह रहा हूं और जो आप समझ रहे हो, क्या वो एक है? आंसर इज यस, वो इंपॉर्टेंट है। दो मतलब गड़बड़। तो सर ये कुछ बेसिक इंटरव्यू टिप्स हैं। एंड व्हाइल यू आर वेयरिंग समथिंग, आई विल ऑलवेज आस्क यू टू वेयर अ लाइट कलर शर्ट, प्रेफरेबली लाइट ब्लू और व्हाइट, विथ सूट इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक और ग्रे, नो अदर कलर। आपको ऐसा पोर्ट्रे करना है कि आप कैंडिडेट नहीं हो, आप एम्प्लॉई हो, और आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हो। ये इंटरव्यू वर्ड दिमाग से डिलीट कर दो। इंटरव्यू ऐसी कोई चीज नहीं होती, कभी सिलेक्ट नहीं होगे। डिस्कशन है। क्या है? डिस्कशन। तो आप एक एम्प्लॉई हो जो डिस्कस करने गया अंदर, आप सिलेक्ट हो जाओगे। भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, फिर भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। सिखा तो देंगे ना। औरों के मुकाबले 2 रुपए कम मिलेंगे, ये हो सकता है, बट रिजेक्शन से तो अच्छा 2 रुपए कम है ना। एटलीस्ट यू गेट अ जॉब। और ऐसे ही इंटरव्यू निकल सकता है, वरना वरना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। नहीं तो रॉकेट साइंस आपने बना दिया है, मैं तो इतना ही जानता हूं, राइट सर? Thank you so much. I think they were very good tips. So, Dipit, we have some questions also. Yes, that's right. We have some questions.
Parneet is asking, how has hiring changed in the last few years? Hiring has changed in the last few years. Drastic change. Again, पहले हायरिंग ट्रांजैक्शनल थी. पहले हम ये जानते थे, हम हायर इस पैरामीटर पे करते थे प्रदीप राइट दीपित Parneet. तो पहले हम हायर कैसे करते थे, मैं आपको बता देता हूं कि जिस रोल के लिए मैं उसे हायर कर रहा हूं ना, वो काम उसे आता है क्या, वो देख के हायर कर लेते थे या कर पाएगा क्या. अब हम ऐसा नहीं करते क्योंकि अब जॉब रोटेट होती है. आज मैं एग्जांपल देता हूं. आज जब मैं एक एचआर हायर करता हूं ना, तो मैं जानने की कोशिश करता हूं वो रिक्रूटमेंट कर लेगा, वो टैलेंट मैनेजमेंट भी कर लेगा, वो सीएसआर भी कर लेगा, सस्टेनेबिलिटी भी कर लेगा, पीएमएस भी कर लेगा. तो पहले तो देखने का नजर, क्योंकि मैं उसको एक रोल पे नहीं रखूंगा, नहीं तो वो कभी हेड एचआर नहीं बनेगा. मैं उसे सारे रोल का एक्सपीरियंस देना चाहता हूं. तो केपेबल है क्या सीखने के, इसे हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन. यानी कि एक चीज तो उसको आती थी जो मुझे चाहिए, बाकी चीजें वो सीख सकता है क्या. तो पहला तो डेवलपमेंट चेंज ये है. नंबर 2, हम उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं हु कैन टॉक बिजनेस. एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं भी काम करो, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही काम करते हो, यही सच्चाई है ना. आपका अपना भी बिजनेस होगा तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट कितना हुआ, यही बात करोगे ना. तो एकेडमिक नॉलेज कितनी है अच्छी या एवरेज है वो चलता है, बट बिजनेस नॉलेज कितनी है, यानी कि मार्केट के बारे में कितना पता है, वो दूसरी चीज है जो पहले नहीं चेक होती थी. Right. आज मेरे इंटरव्यू में व्हेन आई अपीयर्ड फॉर सर्टेन, तो प्रॉफिट पर मुझसे बात हुई, बैलेंस शीट पर मुझसे बात हुई, राइट. Because this role requires it. I will be a contributor. I have my own P&L books, मेरी खुद की है अपनी, जो मेरी कंपनी को हिट करती है. मैं लॉस पे जाऊंगा, मेरी कंपनी लॉस बुक करेगी मेरे लिए, तो मुझे उसकी डोमेन नॉलेज होनी चाहिए. आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट है दीपित. यस. Right. Thank you so much for that, Harshan, and I hope Parneet, that answers your question as well. There is one more question, which is quite interesting, is that how can future candidates, or we can consider people who are in this call students, how can they leverage AI when they are hunting for jobs? Okay. So you don't leverage AI, number 1, you leverage human capital. तो स्टेटमेंट को ठीक करते हैं, ठीक है. We never leverage technology. No, we use technology. There's a difference between usage and leverage, right? So use those technological tools which are of use to you और जो आपको हैंडीकैप नहीं बना रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. चैटबॉट कितने लोग यूज करते होंगे, या काफी लोग करते होंगे, राइट. ना चैटबॉट में क्या होता है ना, आप कुछ टाइप करते हो वो उसका आउटपुट दे देता है, यानी कि वो आपको मेहनत करने का मौका नहीं दे रहा है. I am not into disagreement with chatbot, but chatbot not at your level. No, chatbot at leadership level only. क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है. नंबर 1, तो यूज दोज टेक्नोलॉजीज जो आपको हेल्प करें. जैसे मैंने आपको बोला साइकोमेट्रिक टेस्ट इज अ टेक्नोलॉजी, यूज करो. आप घर में ना किंडल खरीद के लाओ, बुक्स तो पढ़ोगे नहीं, किंडल खरीद के लाओ, किंडल पे पढ़ो. And I'm telling you, read anything in this world which is coming, not only what is your domain knowledge. अगर आज मैं आपसे पूछूं ना कि इसरो अगला मिशन क्या करने वाला है, आपको वो भी पता होना चाहिए. So surf, use internet. I'm telling you, internet is the biggest tool. उससे बड़ा कुछ नहीं है. Use Google wisely. Use YouTube wisely. If you are a tech lover, I'm telling you. हम लोग क्या करते हैं, गूगल फालतू चीजें सर्च करते हैं, हम YouTube पे मूवी सॉन्ग सुन लेते हैं. सुनो यार, दैट्स नॉट, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मैं यूसेज की बात कर रहा हूं. हाउ मेनी ऑफ यू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे? आई कैन गारंटी नॉट इवन 5%. आई डू इट सिंस आई वाज 6 years old एंड आई स्टिल डू इट. मैंने क्या किया, अब न्यूज़पेपर नहीं आता ना, तो मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा. आई रीड माई ईटी एवरी डे बिफोर कमिंग टू ऑफिस, एवरी डे. इट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, राइट? It's a paper technology. So you want to be paper or paperless, you choose. वो आपकी मर्जी है, जो आपको सूट करे. The point is, how do you make use of it? वो आप जो पढ़ रहे हो आपके काम का नहीं है ना, तो उसको, अगर वो आपकी डोमेन नॉलेज नहीं बढ़ा रहा है ना, और आपको कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो मत पढ़ो. वो टूल यूज करो जो आपके लिए रेलेवेंट है.
आई विल गिव यू एग्जांपल. आपको करना है ना, आप कॉर्सेरा के कोर्सेज करो. आप जिस डोमेन के हो ना, उस डोमेन के एक से एक अच्छे सर्टिफिकेशन और कोर्सेज हैं कॉर्सेरा के, एट वेरी चीप रेट्स. आई एम टेलिंग यू, एंड नथिंग इज फ्री, इसलिए आई एम सेइंग एट चीप रेट्स. इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्री में नहीं होती है, बट रेट्स इतने चीप हैं कि 1800 2000 रुपए में 4 4 हफ्ते 8 8 हफ्ते के कोर्सेज हैं, जो आप पढ़ोगे, उसका एग्जाम भी क्लियर करोगे, प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, तो ही आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा. और जो सर्टिफिकेशन मिलेगा वो लाइफ टाइम सर्टिफिकेशन है, यूनिवर्सल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है. तो आपका वो डोमेन क्लियर होगा, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उस डोमेन में और पढ़ने में. लाइक समबडी हु इज इनटू एचआर, अभी जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, अगर कोई एचआर पढ़ रहा होगा, तो आई विल सजेस्ट कि उसको बिजनेस स्ट्रैटेजी, एडवांस बिजनेस स्ट्रैटेजी, पीपल एनालिटिक्स, ऐसे कोर्सेज करने चाहिए. ये हैं कोर्सेज, ये है टेक्नोलॉजी का यूज. इसके अलावा आप पढ़ते रहो, नासा ने क्या किया, इसरो ने क्या किया, कौन सी सरकार गिरी, वो आपकी ओवरऑल नॉलेज को इम्पैक्ट करेगा, वो चाहिए आपको. बट डोमेन नॉलेज के लिए आप ये रेलेवेंट कोर्सेज कर सकते हो. सो गो टू कॉर्सेरा. कॉर्सेरा में आप अपने डोमेन स्पेसिफिक के हिसाब से डाल सकते हैं, कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक इज वन ऑफ द वंडरफुल प्लेटफॉर्म्स. आई हैव आल्सो यूज्ड इट, इसलिए मैं कह रहा हूं. Thank you so much. Any other? There's one more. Yeah, we have quite a few questions. So there's one question which is by someone called Shivam. He said, "Is traveling a hobby that reflects well with employers?" Yes, Right. Okay. but Excellent. yes, So why? Arshit, do you Because have it any? shows how much connected you can be with people, how much can you travel and meet your people. Right. Excellent. We are getting a lot of more questions, and so we'll get right to it. So, of course, Harshit, you're getting a lot of praises from our audience as well. And Ramyash is asking some tips for interviewers to select a good employee. So, if you could just answer this, and I know you already answered a version of this, but just a short answer for this would be great. What's the name of the student? I'm sorry. Ramyash. Okay. So be yourself. I'm telling Take you. that answer. Yeah. देखो, जो दिखता है वो बिकता है. समझ गए? Excellent. Yeah, I hope Ramesh, you got the gist of that, and I completely concur with that statement. Roshan is asking कि MBA complete होने के बाद मेरी job profile क्या होगी? He is currently a branch manager. Okay. So, Harshit, I think it is also more to do with, I think he must be certain employee. I think that is something which is related to the organization. So let's park this question, right? I So agree. that you can separately answer also. Yes, yes. Right. Then someone's asking insights on project management major skills needed for success in the future. Project management skills. Right. Is it important for the future? Is this what is asking, right? Yeah. Does it guarantee, what's the success guarantee on project management skills? So गारंटी वर्ड तो गलत है सर. अब तो प्रोडक्ट्स में भी गारंटी वर्ड यूज नहीं होता, वारंटी यूज होता है. बट Right. I feel and I believe that project management is important. It also helps one to get many of the projects, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की अगर हम बात करें अगेन, तो वो उससे बढ़ती है. तो कभी देखो, कोई भी चीज खराब नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती. आप ये बात समझ लो, ठीक है? कभी भी खराब नहीं जाती. तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Absolutely. And I just wanted to add my one line, because you had mentioned the Kindle, and for everyone who's looking to read or trying to develop a reading habit, and I'm a Kindle user myself, it is one of the best investments you will make, and will drastically cut down your screen time as well. And in addition to that, Sumesh has a question which says, for startups, how to get good at recruiting, especially if you're recruiting at the first time? I think that's a very interesting question, and Harshit would love to hear your hot take on this one. So you must join startups, number one, I'll tell you. Because you are entering into a ship that you will build with your own hands, right? If you join an organization which is already at a saturation stage or already growth phase में है, grow कर चुकी है, तो आपका contribution दिखता नहीं है, right?
बट आप एक स्टार्टअप को जब ज्वाइन करते हो ना, तो आप अर्ली ज्वाइनर्स होते हो. हम उसे कहते हैं होटल इंडस्ट्री में, इट इज कॉल्ड एज प्री ओपनिंग टीम, राइट? So there you at least should stay for 1 year or 2 year of time, because you will understand how building is done, how creation is done. Post that only you should go and work with bigger corporates, because now you have the knowledge, core knowledge कहते हैं ना जिसे, basic core knowledge, in on the field knowledge वो आपको मिलती है. हॉक आई पे आने से पहले ग्राउंड सेंसिंग बहुत जरूरी है. तो स्टार्टअप्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और एमबीए में आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपको स्टार्टअप आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और बैलेंस शीट कैसी है, वो स्टडी करके जरूर जाना, वो इंपॉर्टेंट है. नॉट एवरी स्टार्टअप इज प्रॉफिटेबल, नॉट एवरी स्टार्टअप विल बी एबल टू पे. और ये चेक जरूर करना कि उस स्टार्टअप ने कोविड पीरियड क्लियर किया है कि नहीं किया है, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है. Very interesting. I think that pretty much answers all the questions that we had. And thank you so much, Harshit, and thank you so much, Tarunji, for this absolutely enlightening session. And so we do a lot of these, but I feel in terms of the areas that we covered, the insights that we got, I think this has been one of the most amazing webinars that we've hosted in a really, really long time. So thank you so much, Harshit, for your time today. And we look forward to having you again sometime in the future. And if God willing, we also hope to welcome you on the campus someday and engage with our offline students also. Definitely. Tarunji, over to you. So thank you, Harshit ji, for a very wonderful and interactive session, which I was anticipating actually after having met you in Gurgaon office. I was expecting this type of interaction only. So it has been really insightful and full of experiential learning tips to the student. So thank you from my side and on behalf of Shulni University. So nice of you, and we look It's forward been to. my pleasure, sir. It's been my pleasure. मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया. So I'm always there for these students to help them out in whatever. And आप मेरी LinkedIn प्रोफाइल इनसे शेयर कर देना. In case if they have questions, they can message me on LinkedIn, and I would love to revert them back. That's for sure. It may take time, so delay हो सकता है, but I will revert them back. I revert all messages. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Harshit. Thank you, Tarunji. thank you, Dipit. Thank you all. Thank you so much. Thank you. It's our pleasure, Harshit. See you soon. Thank you, everyone. Have a great day. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye.